Okay, I'll just first revise whatever we have done in our 11th standard portion. First, we learned about force formula for electrostatic. Force between two charges. The force between two charges. I'm sure थोड़ा याद नहीं रहेगा तुमको. The force between two charges is given by formula 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. Where Q1 Q2 are the two force charges and R is the distance between them. This is the formula for force. Next is electric intensity. It is called as electric field intensity or electric intensity. The formula for electric intensity is force upon test charge. So it is force upon test charge. यानी एक charge कम हो जाता है. Because एक charge कम हो जाता है, तो formula becomes 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. This is the intensity produced by this charge Q, where I have kept a test charge Q in the vicinity of it. So what is the intensity produced by this charge, not this charge, because this is a test charge. What is the intensity produced by this charge over here at this point? To find that, I have used a test charge. So it is force produced between them divided by the charge. It is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R square. The unit of force is Newton. The unit of electric field intensity is, you can make a unit over here. What is it? Newton per coulomb. Next, electric potential. What is the potential produced by this charge over here? Potential मतलब energy होता है. The formula for the potential is minus E into dx. यानी intensity में से dx यानी distance divide करना है, multiply करना है, sorry. ठीक है, यानी एक dx यानी एक r cancel हो जाएगा. So the formula becomes 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. Okay, so these are the ways to remember. The easiest way to remember formulas are, पहले सिर्फ force ही याद रखो. 1 upon 4 pi epsilon 0. By the way, I think you must be remembering this. 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 raised to 9. Electric field में ये constant क्यों use करते हैं? Because 1 upon 4 pi epsilon 0 का value is 9 into 10 raised to 9. By the way, magnetic field में हम लोग ये use करते थे. If you remember, mu 0 upon 4 pi या फिर mu 0. The value of that is 10 raised to minus 7. Okay, या फिर what is mu 0? 4 pi into 10 raised to minus 7. Please do remember, ये constant magnetic field में आता है, ये constant electric field में आता है. Okay. How will I remember it? Force between any two charges is given by Q1 Q2 upon R square. Okay. अब इसमें से एक charge निकाल दो. तो एक ही चार्ज बचेगा Q upon R square. इसमें से एक डिस्टेंस निकाल दो Q upon R. So if you remember it in line, तुमको इसी को याद रखना है. इसमें से चार्ज निकाला, इसमें से डिस्टेंस निकाला. Okay. Now, what is the unit of potential? Potential का यूनिट आता है वोल्ट. अगर मैंने पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट यूज किया ना, इसका यूनिट वोल्ट यूज किया, तो इंटेंसिटी का और एक यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर. यानी इसका दो यूनिट्स है, न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर भी है. These are just a basic revision what we have done in our 11th standard. Okay, कुछ question है about 11th standard revision? Please ask. In 11th we also learned Gauss theorem. Now this is another most important theorem. तुम्हारा start of the chapter is based on your 11th theorem, that is the Gauss theorem. Okay. Gauss theorem states that the flux of the net. अच्छा हाँ, before I continue with this, पहले तो flux क्या होता है? This is the symbol for flux. Okay. We know that every charge produces electric field around it. Okay. For example, if I take a positive charge, the electric field are outwards. If there is a negative charge, the electric field is inwards. If there is a surface area, these lines of forces will fall on this surface area. Okay, so electric flux means the number of lines of forces passing normally through the surface area. Number of lines of forces passing normally through the surface area. That's the reason flux is given by formula E vector dot ds vector. E vector यानी electric field,
that is the electric lines of forces, electric field. ds is the area. If you notice it, it's a dot product of vectors. मतलब एक्चुअल फॉर्मूला आएगा E ds cos थीटा. फॉर्मूला क्या आएगा? E ds cos थीटा. ठीक है, ये थीटा क्या रहेगा? If you remember the definition, what is electric flux? It is the number of lines of force passing normally. तुम नोटिस करो, ये lines of force normally नहीं जा रहा है. अगर ये सरफेस है और तुम्हारा ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है तो तुमको नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए. तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल विथ नॉर्मल चाहिए. यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस इज द नॉर्मल. नॉर्मल टू द सरफेस मतलब नॉर्मल वर्ड का मतलब परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दिस इज द नॉर्मल. तो ये एंगल लेने का, इसी का कॉस लेना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है दैट इज कॉस थीटा. ओके, नाउ दिस इज कॉस थीटा, दिस इज द एंगल. एंगल किसके बीच का एंगल है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो और नॉर्मल, उनके बीच में एंगल है. इसका एंगल सरफेस के साथ नहीं है, सरफेस के साथ नहीं है, इसका एंगल नॉर्मल के साथ है, दैट इज थीटा. दैट्स द रीजन द लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम फ्लक्स. व्हाई? The lines of force which are perpendicular to the surface produces maximum flux. Can you tell me the reason why? Cos is 90. क्या आएगा? cos थीटा 1 होगा. Very nice. क्यों 1 होएगा? परपेंडिकुलर है 90. Perpendicular 90. थोड़ा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो. See, the angle is between this electric lines of force and the normal. What is the angle between this electric lines of force and normal? अगर ये perpendicular रहेगा तो 90. नहीं, गलती कर दिया. 0 degree. सोचो, एंगल किसके बीच में बोला है मैंने? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्मल के बीच में. वापस सोचो. Cos theta 0 होगा. नहीं बाबा, ठीक से सोचो, तुमने गलत सोच लिया. थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेगा, सो जस्ट क्लैरिफाई. सी, दीस आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये सरफेस है, इसका नॉर्मल इधर है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है व्हिच इज गोइंग नॉर्मली. तो लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या है? यही लाइंस ऑफ फोर्स है, इधर ही नॉर्मल है. क्या एंगल है? 0 है, 90 नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो. दिस इज 0 एंड cos ऑफ 0 यानी 1 होता है. दैट्स द रीजन the electric flux becomes maximum when it is perpendicular to the surface. So electric flux maximum कब रहेगा? When it is perpendicular. Can you tell me if it is tangential to the surface क्या होने वाला है? Electric flux, this is electric flux. Please, words थोड़े नए हैं. मैं 11th में किया, काफी टाइम हो गया. अगर मेरा सरफेस के टेंजेंशियल फील्ड जा रहा है, मेरा लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था, नॉर्मल था, इस बार टेंजेंशियल जा रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा? दिमाग लगाओ फास्ट. इट्स ओके इफ यू गिव रॉन्ग आंसर. कंटिन्यू. मिनिमम रहेगा. मिनिमम यानी कितना रहेगा? 0. 0 रहेगा. 0 बिकॉज़ दिस इज अ नॉर्मल. ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू सरफेस, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. एंगल इज बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, इसको. ओके, उनके बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल इज 90, देयरफॉर cos ऑफ 90 बिकम 0. यानी अगर टेंजेंशियल टू सरफेस जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स विल बी 0, अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाएगा फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. तो थीटा क्या सिग्निफाई करता है? एट एनी अदर एंगल. ओके, एनी क्वेश्चंस क्लियर? ओके, नाउ गॉस थ्योरम. द फ्लक्स of the net electric field through a closed surface which has charge q. This is a closed surface. The flux of electric field, net electric field through a closed surface equals, what is the formula for flux by the way? What is the formula for flux? E into ds. अच्छा, by the way I will use a cyclic integral, मतलब total flux. Okay, पूरा flux. Cyclic integral of E into ds is given by this flux. ये फ्लक्स का फॉर्मूला ये है. ये साइन का मतलब होता है साइक्लिक इंटीग्रल. साइक्लिक इंटीग्रल यानी अगर ये क्लोज सरफेस है, यानी यहां से स्टार्ट करूंगा वापस रिटर्न इधर ही आने का है, तो डेफिनेट इंटीग्रल वर्ड यूज नहीं कर सकते. डेफिनेट इंटीग्रल जिधर से शुरू किया उधर ही आएंगे तो 0 बन जाएगा.
इसलिए साइक्लिक इंटीग्रल वर्ड यूज किया है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर इनटू ds वेक्टर इज गिवन बाय द चार्ज इट कंटेन्स divided by epsilon 0. Now this is called as a Gauss theorem. Okay, Gauss theorem का definition टेक्स्ट बुक में नहीं मिला है, ठीक है, रहेगा भी, मुझे दिखा नहीं, but टारगेट में है. Please go through the definition. This flux of the net electric field through a closed surface is given by the charge enclosed by that surface divided by epsilon 0. This is Gauss theorem. Okay, now we are going to learn the application of Gauss theorem. So the first application that we study this is the application of Gauss theorem. Okay, now the first application that we study is the sphere. So we are trying to find the electric field. So what is the application of Gauss theorem? As Gauss theorem helps us to find the electric field for a certain symmetrical closed surface. So this I am taking a sphere, which is a symmetrical closed surface. We are finding the electric field produced by the charge enclosed by it at a certain point P. Okay, so that point is at a distance of small r. This symmetrical closed figure has a radius of capital R. This distance is small r, point P, जहां पे मेरे को electric field find out करना है. Okay, and this closed surface has the radius of R. We have learned Gauss theorem in 11th, उसका application 12th में पढ़ रहे. Okay, this topic is one of the important topics from electrostatic point of view. I have taken a closed sphere. उसके अंदर चार्ज Q है. We are finding the intensity at point P, which is at a distance of small r. To use Gauss theorem, I will consider a Gaussian sphere of radius r. Please do remember, we are considering a three-dimensional object, that is a sphere. Okay. So if this is the actual sphere, this is the actual sphere which contains charge Q, and this is the point where I want to find the electric field intensity. I will consider an imaginary sphere around it, and that sphere is called as a Gaussian sphere. So to find the intensity at this point, मैंने यहाँ पे एक imaginary sphere assume किया है. I am taking a small area ds. Okay. So first we are going to apply Gauss theorem. Now Gauss theorem apply कैसे करें, पहले मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ. तुम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट करोगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर इक्वेट करना है. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे इसके. देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे इसी स्फीयर के लिए. फिर दोनों को इक्वेट करना, तब मेरे को इंटेंसिटी मिल जाएगी. तो फ्लक्स विद दिस, ये टेक्निक मेरे को 3 बार यूज करने का है. मेरे को 3 एप्लीकेशन पढ़ने का है, तीनों में यही टेक्निक यूज होने वाला है. तो एक बार ये समझ गए तो नेक्स्ट 2 एप्लीकेशन में तुम लोग ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो. करना क्या है, ध्यान देना. कंपेयर फ्लक्स विद दिस फॉर्मूला, फ्लक्स विद दिस फॉर्मूला, और फिर दोनों को इक्वेट करोगे, उससे इंटेंसिटी मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट स्टेप. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर हियर? द चार्ज एनक्लोज्ड इज Q divided by epsilon 0. Okay. Second step. What is the flux over here? This is the area ds. It's a cyclic integral E vector dot ds vector. Any questions till here? मैंने फ्लक्स मैंने क्या कहा, पहले इसको इक्वेट करो, फिर इसको इससे इक्वेट करो. ठीक है, मैं एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. टेक्स्ट बुक में यही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मतलब घुस के बता दिया है, उसके कारण कंफ्यूजन ज्यादा होता है. पहले इसको अंडरस्टैंड करो, बाद में टेक्स्ट बुक का समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. रूल समझाओ. पहले फ्लक्स को Q अपॉन E एप्सिलॉन 0 से किया, फिर फ्लक्स को E ds से किया. E vector is constant. See, this is a charge Q
This is the charge q which will be all over the surface, and do remember for a symmetrical object the charge q will be equally divided all over the surface. ऐसा नहीं होगा कि इधर चार्ज ज्यादा इधर चार्ज कम है, यानी अगर पूरे सरफेस पे चार्ज इज इक्वली डिवाइडेड विद इन दैट स्फीयर, यानी पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे सेम रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरे स्फीयर पे हर जगह पे सेम रहेगा, यानी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट जहां पे मैंने गाउसियन स्फीयर बनाया हुआ है, उस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा गया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, यानी पूरे स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। मैंने एरिया डीएस लिया। दिस इज द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डीएस कॉस थीटा। क्या किया अपन ने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया, ई डीएस कॉस थीटा। नाउ लेट अस फाइंड व्हाट इज दिस एंगल थीटा। ओके, थीटा क्या रहेगा? नाउ if you notice it, these electric lines of force which is coming from the center of the sphere, these electric lines of force coming from the center of the sphere, उस सरफेस स्फीयर के सरफेस से क्या रहेगा? इस स्फीयर के सरफेस से परपेंडिकुलर, मतलब ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। रेडियली आउटवर्ड जाने, अगर ये सरफेस ऑफ स्फीयर है तो वो रेडियली सेंटर से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है? ये स्फीयर का है, और अगर मैं गाउसियन स्फीयर लूं वो भी स्फीयर ही है ना, तो उसके भी रेडियली आउटवर्ड्स ही जा रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? टेल मी। जीरो विल बी जीरो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इधर एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, कि टेंजेंशियल रहेगा तो 90 यानी फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और अगर नॉर्मली रहेगा तो थीटा विल बी जीरो, यानी कॉस थीटा विल बिकम 1। सो थीटा जीरो है, यानी cos theta is 1. If I put up this cos theta as 1, this will become E into ds. ठीक है? पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया that पूरे स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट। वेरी नाइस। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, यानी इट्स अ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds. नाउ ds यानी ये स्मॉल स्फीयर सरफेस है, उसका साइक्लिक इंटीग्रल करना, मतलब पूरे क्लोज स्फीयर को, उस स्फीयर को पूरा क्लोज कर देने का है, ठीक है? यानी उस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, इन शॉर्ट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएस। अगर ये गाउसियन स्फीयर है, ये डीएस है, इसको मैंने साइक्लिक इंटीग्रल किया तो ये स्फीयर एरिया डीएस पूरे स्फीयर का हो गया, यानी पूरे स्फीयर का एरिया हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्फीयर? मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया, क्या है? 4 pi r square. 4 pi r square. Can you tell me which r will come? Capital R or small r? स्मॉल आर। Very nice. क्यों small r? Because area ds इधर है ना, हम लोग इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं। अब समझ में आ गया मैंने क्या कहा था तुमको? क्या करना है? गॉस थ्योरम, फ्लक्स को पहले इससे इक्वेट करो, वो लिखा ना, फ्लक्स को फिर इससे इक्वेट करो, उसको सॉल्व करो। अब क्या करने का था? लास्ट स्टेप क्या बोला था? इसको और इसको इक्वल कर दो, यानी कि लास्ट स्टेप में क्या आएगा? बाय गॉस थ्योरम, ये दोनों फ्लक्स है ना, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब ये इसका काम खत्म हो गया, अब ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को इंटेंसिटी में इंटरेस्ट है जिसको इससे रिलेट करना है। ये नहीं भी अभी भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? सो बाय गॉस थ्योरम फ्रॉम 1 and 2, ओके, इसको क्रॉस करो। सो व्हाट इज इंटेंसिटी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, 4 पाई नीचे आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, नोटिस करो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू ऑलरेडी ऊपर है, r स्क्वायर नीचे आ गया। This is the formula. I hope this is an easiest application that you studied. By the way, for any point source at a certain point, intensity का जो आंसर आया है वो इधर था जो तुमने 11 में पढ़ा था, ठीक है? If you notice it, sphere का any point outside is similar to the point source formula. Similar formula आया,
ठीक है, बट प्लीज डू रिमेंबर ये एनी पॉइंट के लिए और ये स्फीयर के लिए फॉर्मूला वैसे सेम ही दिख रहा है, ठीक है। ओके, नाउ same intensity formula I can write it in a slightly different way. I am writing this in a bit different way. Can I rub this please? तुमको ये याद हो गया रहेगा तो मैं रब कर दूं, मेरे को जगह नहीं मिल रहा है. For charge density, density word, what do you mean by density word? Density का बहुत सारा मीनिंग होता है, linear density, surface density, volume density. Can you tell me linear density मतलब क्या होता है? Divide by length. Surface density मतलब divide by area. Volume density यानी divide by volume. Okay, so density word का मतलब mass upon volume हमेशा नहीं रहता है. What is the word I am using? Mass upon volume जो तुमने 8th standard में पढ़ा था ना, जो तुमने 8th standard में mass upon volume पढ़ा था, that was mass density. Mass density. This is charge density. ये charge density है. So tell me, mass density के टाइम पे mass upon volume आया था. ये charge density यानी क्या आएगा? थोड़ा फास्ट. चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? चार्ज से डिवाइड करेंगे. चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, बट वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है. दिस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी. प्लीज यहाँ पे देखो, इतना डिफिकल्ट चीज नहीं, कोई रट्टा नहीं मारने का है. सिंपल सिंपल वर्ड्स है, इन वर्ड्स को सीरियसली ले लो. डेंसिटी का मतलब तुमको पता है, सरफेस मतलब डिवाइड बाय एरिया हो गया, चार्ज मतलब चार्ज अपॉन एरिया हो गया. सो दिस इज डिवाइड बाय एरिया. Okay, so I just write area over here right now. Okay, now if this is a charge, if this is the area, यही फॉर्मूला क्या बनेगा? Q upon area, area of surface. By the way, it's a surface. ये surface नहीं है, ये इमेजिनरी सरफेस है. सरफेस ये नहीं है, सरफेस इधर है. तो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका देख रहा हूं. क्यों? क्योंकि मेरा चार्ज इस सरफेस के ऊपर है, इसके ऊपर है ही नहीं. सो व्हेन आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं इस सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं. तो इस सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज Q अपॉन एरिया. तो मतलब इसका एरिया, ये भी स्फीयर है, स्फीयर है, तो इसका एरिया क्या है? 4 pi r square. 4 pi pi r square. कौन सा आ रहा है? कैपिटल. कैपिटल. ओके, नाउ इसको इधर क्रॉस करो. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. Q के बदले इंस्टेड ऑफ Q क्या आ रहा है? 4 पाई r square into sigma. The symbol is called as sigma, surface charge density, upon small r square. 4 pi gets cancelled. Your answer becomes sigma upon epsilon 0 into r square upon small r square. This is electric field intensity, another formula. Okay, so this is your main formula. यही formula in terms of surface charge density, same formula in terms of surface charge density is given by this answer. ठीक है, Q और इसमें फर्क, न्यूमेरिकल्स में फर्क कैसे पहचानने का? Q यानी क्या होता है? कुलुम. चार्ज इज इन कुलुम. बट यहाँ पे सिग्मा यानी क्या होता है? कुलुम पर मीटर स्क्वायर. तो समझ जाना, वो चार्ज, वर्ड चार्ज ही लिखा रहेगा कंफ्यूज करने के लिए. वर्ड चार्ज ही लिखा है, इसलिए मैंने कहा हर बार ध्यान तुमको किधर देने का है, फोकस किधर करना है? यूनिट्स पे. कुलुम लिखा मतलब चार्ज हो गया, कुलुम अपॉन मीटर स्क्वायर लिखा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया. ओके, नाउ केस 1. इफ ये जो पॉइंट P है ना, इफ पॉइंट P is on the surface of the sphere, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई डोंट वांट टू फाइंड इट एट अनदर पॉइंट, आई वांट टू फाइंड इट ऑन द पॉइंट ऑन द सरफेस. सरफेस पे का ही पॉइंट का इंटेंसिटी मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? चलिए, ये केस 1, 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन स्मॉल r यानी डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट था ना. टेल मी क्या आंसर बनेगा? कैपिटल R square. कैपिटल R. वेरी नाइस. तो ये चेंज आ गया. ओके, अब मेरे को बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा?
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर इक्वल हो गया ना, ये भी कैपिटल आर हो गया, यानी कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट ड्यूरिंग रिवीजन टाइम तुमको समझ में आएगा। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डिराइविंग दिस फर्स्ट एप्लीकेशन। टेक्स्ट बुक के हिसाब से थोड़ा सा बीच में स्टेटमेंट्स डालने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वर्ड समझने में डिफिकल्टी आ रहा है, बट अदरवाइज दिस डेरिवेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। ये डेरिवेशन समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला भी समझेगा और उसके बाद वाला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीनों एप्लीकेशन में मेरे को सिमिलर रूल अप्लाई करना है। वन सेकेंड, क्या किया है वापस देख लो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट वाज बाय गॉस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट इज आल्सो इक्वल टू E into ds। फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला तो cos थीटा, थीटा 0 है बिकॉज नॉर्मली जा रहा है, so cos theta is 1, तो ये टर्म हट गया। E कांस्टेंट है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds, साइक्लिक इंटीग्रल मतलब पूरा एरिया कवर करना है, इज गाउसियन स्फीयर का इज 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सी हम लोग इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे सिमेट्रिकल फिगर कराने का, ये जो भी सरफेस रहेगा ना उसका सिमेट्रिकल फिगर इधर बनाने का। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है लीनियर सरफेस, तो इसका गाउसियन सरफेस इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इस पॉइंट पे इसका गाउसियन सरफेस क्या बनेगा, कैन यू इमेजिन? ये सिमेट्रिकल सरफेस है, इसका इस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस क्या बनेगा, ये स्फीयर है तो इसका गाउसियन सरफेस विल आल्सो बिकम अ स्फीयर। ये लीनियर सरफेस है, लीनियर है लाइन है, ठीक है, इसका इस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस क्या बनेगा, तो ये लाइन नहीं बनेगा, पूरा क्लोज फिगर बनना चाहिए, रेक्टेंगल, सिलेंडर। यस वेरी नाइस, इट विल बिकम अ सिलेंडर। ये ऐसा और ऐसा, ये पूरा सिलेंडर बनेगा। ठीक है, सो दैट इज द टेक्निक यूज्ड। ओके, सो दिस बिकम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ दैट सरफेस 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज़ हम लोग इधर का इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं। फिर इसको और इसको इक्वेट किया, फ्लक्स लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रॉम 1 and 2 इंटेंसिटी मिल गया। फिर उसके केसेस किए, इसी फॉर्मूला को चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला में लिखा है। ठीक है, r square upon r square। केस 1, if the point is on the sphere तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। केस 2 तो लिखा ही नहीं अपन ने। केस 2, if the point P is inside the sphere, what happened if the point is outside, उसका तो पूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन if the point is outside। what happens if the point is on the surface, वो केस 1 है। what happens if the point is inside, आउटसाइड हो गया डेरिवेशन ही हो गया, ऑन द सरफेस केस 1। इनसाइड में क्या होगा पता है, चार्ज का इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस इज ऑलवेज 0, तो इसको तुमको एक्सप्लेन नहीं करना है, तुमको सीधा 0 लिखना है। ठीक है, हाँ टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा है उतना लर्न कर लेना, सीधा आंसर 0 आएगा यहाँ पे। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? व्हाई द इंटेंसिटी इज 0? सिंस देयर इज नो चार्जेस इनसाइड, इसका इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है। सी सरफेस पे चार्ज होता है ना, वो सरफेस पे होता है। ठीक है, वी कैलकुलेटेड द इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बट वो सरफेस पे रहता है, चार्जेस आर ऑलवेज ऑन द सरफेस। अगर ये स्फीयर है तो उसके सरफेस पे चार्ज होगा, सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड, दैट्स द रीजन इंटेंसिटी इज 0। lambda is the unit used for, this is a cylinder, this is going infinite length, ये infinite length का है। ठीक है, तो इनफाइनाइट लेंथ में ले चार्ज जो है ना वो इक्वली डिवाइड होएगा पूरे में। हमें इनफाइनाइट लेंथ का पॉइंट पी पे इंटेंसिटी नहीं फाइंड कर सकता, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। लैम्बडा मतलब क्या हो गया, पूरे सिलेंडर पे का चार्ज है, तो लैम्बडा यानी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ पे का चार्ज इज लैम्बडा, पर यूनिट लेंथ पे का चार्ज इज लैम्बडा। ठीक है, सर लैम्बडा क्या होता है, सिग्निफाई कर रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यू कैन इवन राइट इट एज Q upon L। okay, now I am taking a point P, this cylinder has a radius of capital R, जैसे हमने लास्ट टाइम स्फीयर केस में कैपिटल R लिया था, पॉइंट P था, तो हमने क्या किया था यहाँ पे,
we have drawn a Gaussian sphere around it, right? Point P के इंटेंसिटी ढूंढना है, इधर भी पॉइंट P पे इंटेंसिटी ढूंढने का है, तो क्या करने का? We'll be making a Gaussian surface. Can you tell me, in this cylinder, what will be the Gaussian surface? Cylinder. A cylinder itself. Okay, I hope you can understand this. मेरे को ये पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो I have drawn a cylinder. I have assumed only this part of the length L. मैंने पूरा सिलेंडर नहीं लिया है, सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट हिस्सा लिया है, उसी का इफेक्ट इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहा हूं, इंटेंसिटी का. ठीक है, the charges are equally divided over here. This length is L. This point is at a distance. क्या डिस्टेंस था? Smaller. क्या डिस्टेंस था? Smaller. Clear with this? ये point is at a distance at smaller. Okay. Now apply the similar steps that you have studied before. पिछले डेरिवेशन में जो स्टेप्स लर्न किया ना, सेम स्टेप्स अप्लाई करो. टेल मी, सबसे पहला स्टेप क्या है? Flux is Q upon epsilon 0. So by Gauss theorem, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज Q अपॉन एप्सिलॉन 0. ठीक है. अच्छा, बाय द वे समटाइम्स अगर ये मीडियम, ये ना अभी अपन ने वैक्यूम कंसीडर किया है, समझो अगर कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन यूज करते. ये भी मैं अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ, एप्सिलॉन यूज करते. इफ देयर इज एनी अदर मीडियम, वैक्यूम नहीं है, देयर इज सम मीडियम, वैक्यूम रहेगा तो एप्सिलॉन 0 आएगा. फॉर अ मीडियम इट इज एप्सिलॉन, तो फॉर्मूला आता है K एप्सिलॉन 0, वेयर K इज कॉल्ड एज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वर्ड याद रखना, K is called as a dielectric constant over here. Okay. Now, वैसे अभी अपने डेरिवेशन में ये एप्सिलॉन नहीं यूज करना, तो दिस इज Q upon epsilon 0. Next, same way, flux can also be calculated as cyclic integral of intensity into ds vector. Clear with this? याद है ना, ये हमने किया था लास्ट टाइम. Yes. Okay. Yes. Now, the intensity vector, अगर ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी जो वेक्टर है, इंटेंसिटी है, दैट विल बी नॉर्मली गोइंग आउटवर्ड्स. वो नॉर्मली आउटवर्ड जा रहा है. ठीक है, यानी वो इंटेंसिटी और इसका एंगल क्या फॉर्म कर रहा है? 0. वापस एक बार 0 ही आएगा. ओके, so intensity vector और ये surface, this is the surface, और तुम्हारा intensity vector सीधा जाएगा. So the angle made between the intensity vector and normal to surface is 0 ही रहेगा, क्योंकि यही normal है, यही intensity है. ठीक है, तो angle is 0. So once again theta is 0, यानी cos theta is 1. ठीक है. तो cos थीटा 1 हो गया. नेक्स्ट, इंटेंसिटी के बारे में बताओ. क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा, यानी ये कांस्टेंट हो गया. ठीक है, तो यहां पर E बाहर आएगा, cos थीटा तो 1 है, यानी साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds आएगा. ओके, नाउ व्हाट इज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds? मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं. ठीक है. ओके, नाउ बिफोर वी कंटिन्यू, एट द प्लेन सरफेस, हम लोग कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एग्जांपल ये मेरा सिलेंडर है, मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूं, हम लोग उसका फ्लक्स ढूंढ रहे हैं. ठीक है, बट यही कर्व्ड सरफेस पे, अगर ये सिलेंडर है कर्व्ड सरफेस में, ये ऊपर का जो सरफेस है ना, ये प्लेन सरफेस है, मैं उसकी बात क्यों नहीं कर रहा? कैन यू गिव मी अ रीजन? और ये इसका रीजन मैं पहले भी दे चुका हूं, स्फीयर में नहीं दिया, उससे पहले मैंने स्टार्ट करते वक्त ही बताया था. ठीक है, देखो मैं क्या पूछ रहा बताया. अभी जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं ना, वो सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस, हाँ ये गाउसियन स्फीयर है, सिलेंडर है सॉरी, उसका कर्व्ड सरफेस की बात करें, पर उधर एक प्लेन सरफेस भी तो है, मैं इसकी बात कर. ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस का इंटेंसिटी क्यों नहीं डिस्कस कर रहा?
वहाँ पे टेंजेंशियली पास होगा इसलिए। वेरी नाइस, इफ यू रिमेम्बर यही लाइन मैंने पहले यूज किया था, दैट इधर में इंटेंसिटी इधर जा रहा है, यानी टेंजेंशियल टू द सरफेस जा रहा है, एट प्लेन सरफेस एट टॉप एंड बॉटम। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, प्लेन सरफेस एट टॉप एंड बॉटम, intensity, electric field intensity is tangential to the surface। यानी मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, tangential to the surface, ठीक है। therefore the intensity, the flux at plane surface is 0, ठीक है। इसका और अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वैसे वो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, और अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुमको इतना ही बता रहा हूं, प्लेन सरफेस पे थीटा कितना आएगा? 90. थीटा इज 90। वेरी गुड। एट प्लेन सरफेस थीटा इज 90। क्यों 90 आया? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और एरिया वेक्टर प्लेन सरफेस का इधर है। मेरा एरिया वेक्टर इधर है, इंटेंसिटी इधर जा रहा है, तो द एंगल बिटवीन देम इज 90 and that's the reason cos theta becomes 0। इसलिए प्लेन सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने प्लेन सरफेस को डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। तो नाउ टेल मी, अभी मेरे पास सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस का सिलेंडर का साइक्लिक इंटीग्रेशन क्या आएगा? मतलब पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या है? जैसे लास्ट टाइम पूरे स्फीयर का साइक्लिक इंटीग्रल आया था 4πr², वैसे सिलेंडर का क्या है? 2πr(h). h यानी हाइट आता है, इस बार हाइट अपना l है, तो e × 2πrl आया। यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे को दोनों मिल गया गॉस थ्योरम से, अब दोनों को इक्वेट करो। देखो बाय गॉस थ्योरम Q upon epsilon 0 is equal to E into 2πrl। यहां तक समझा? जो लास्ट टाइम किया वैसा ही स्टेप्स जा रहा है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला में 4πr² के बदले 2πrl। नाउ व्हाट इज E? ये 2π इधर आएगा, 2π epsilon 0, r भी नीचे आया, 1/r, Q ऑलरेडी ऊपर था, Q upon L। So what is intensity? 2π मैंने epsilon 0 के साथ लिखा है, R भी नीचे आ गया, L भी नीचे आ गया, Q upon L। Do you remember Q क्या था? Q क्या था? What is Q? Charge. Is the charge। पर ये चार्ज इधर क्या है? Is the total charge on the cylinder। ठीक है, पर मेरे गाउसियन सिलेंडर के अंदर तो पूरा चार्ज नहीं आया ना, वो तो इतना ही आया है, तो मेरे को क्यू चार्ज नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। लैम्डा, यस, वेरी नाइस। व्हाई लैम्डा? बिकॉज व्हाट इज लैम्डा? इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये टर्म निकल गया, तो व्हाट इज E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन 0, Q अपॉन L के बदले आएगा लैम्डा अपॉन R। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. This is at point outside the cylinder. Okay. Any questions till here? Then please ask. Okay. Further, अभी मेरे को यही फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी में लिख रहा है। So what is the formula for surface charge density? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी इस सरफेस पे का, ये कैपिटल R दिख रहा है ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख रहा है। सो फॉर्मूला क्या आता है? द चार्ज हेल्ड ऑन द सरफेस एरिया ओवर हियर, इसका सरफेस एरिया। कैन यू टेल मी? देखो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिंबल का मतलब क्या होता है? एक्चुअल सरफेस पे का चार्ज डेंसिटी। गाउसियन सिलेंडर पे का चार्ज डेंसिटी नहीं, एक्चुअल सरफेस। ये तो इमेजिनरी सिलेंडर है,
मैं इसकी बात कर, एक्चुअल सरफेस का चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ उसका फॉर्मूला क्या आएगा, चार्ज अपॉन इसका एरिया। इसका एरिया क्या है, इधर 2 इधर से pi RL हाँ, 2 pi कौन r सा आर आएगा, capital R. capital ठीक है, बट क्यू अपॉन एल यानी क्या है, Lambda. lambda अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट इज इंटेंसिटी, ये लैम्बडा को सब्स्टिट्यूट करो, ये क्रॉस हो जाएगा, लैम्बडा के बदले क्या आएगा, sigma 2 pi 2 पाई आर इंटू सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो इंटेंसिटी बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी का ये आगे फॉर्मूला है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज किया, एट अ पॉइंट पी आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, बिफोर वी गो अहेड विद द केसेस, टेल मी, यही फॉर्मूला स्फीयर में क्या आया था, याद करो, अभी अपने स्फीयर वाला डेरिवेशन किया ना, 1/4 pi epsilon 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। इस बार क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं है, लैम्बडा अपॉन आर है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यही फॉर्मूला स्फीयर में क्या आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस याद रखो, तो रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंजेस याद रखना। क्यू के बदले लैम्बडा आया, बिकॉज दिस इज पर यूनिट लेंथ होता है, 4 पाई के बदले 2 पाई आया, आर स्क्वायर के बदले आर आया, इधर आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के बदले कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आया। रिमेंबर दोस चेंजेस। नाउ केस 1, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, उसका इंटेंसिटी ढूंढना है। ठीक है, यानी ये पॉइंट पी सरफेस के ऊपर है, आउटसाइड नहीं है। आउटसाइड के लिए पूरा डेरिवेशन कर लिया अपन ने, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस होता तो क्या चेंजेस आता, तो मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता, लुक एट दिस एंड टेल मी, क्या फॉर्मूला बनता, 1/2 pi 2 पाई epsilon 0 एप्सिलॉन 0 lambda upon r लैम्बडा capital अपॉन R. कैपिटल। वेरी नाइस। अब मेरे को बताओ, ये फॉर्मूला सेम ऑन द सरफेस के लिए क्या बनता, ऑन द सरफेस में स्मॉल आर विल आल्सो बिकम कैपिटल आर। स्मॉल आर, ये पॉइंट पी इधर से इधर शिफ्ट हुआ है, इधर से इधर आया है, तो स्मॉल आर इज कैपिटल आर, यानी आर और आर कैंसिल हो गए, यानी आंसर इज सिग्मा sigma अपॉन upon epsilon एप्सिलॉन। 0 So this is your answer. Case 2. Now tell me, case 2 कौन सा था? At a point inside the surface. 0 0 0 Intensity is equal to 0. Interesting. समझ में आ? So intensity due to an infinite, this is infinite charged plane sheet. So there is positive charges everywhere. और इसका intensity at point P find out करना है. Assume this is point P. I want to find the intensity produced by this infinitely large plane sheet. ये ना plane surface यानी it goes to infinity. जैसे line goes to infinity, वैसे ये plane surface also goes to infinity. ठीक है? So this is infinite plane surface. उसका intensity at point P है. There are charges equally divided on that surface. Now to find this point P, I have to make a symmetrical Gaussian surface. Like sphere के केस में हमने Gaussian surface क्या बनाया? मेरे को point P पे intensity ढूंढना था, तो sphere के लिए मैंने इसका Gaussian surface क्या बनाया? Sphere बनाया। सिलेंडर के लिए Gaussian surface क्या बनाया? सिलेंडर के लिए सिलेंडर ही बना। वैसे प्लेन के लिए प्लेन नहीं बनेगा। What I will do is I am going to make a surface which is cylindrical. ठीक है? Now this length of this surface I am taking it as 2r. 2r यानी this length is r. यहां से प्लेन सरफेस है, ये लेंथ r है, पर मैंने जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लिया है ना, वो r पार लिया है। तो यहां से यहां तक लेंथ r है, इधर से इधर तक लेंथ r है। ठीक है? यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा प्लेन सरफेस है,
ये मेरा पॉइंट है, तो ये मैंने सिलेंडर अज्यूम किया है इधर, दिस लेंथ इज आर, इसका लेंथ आर है, तो ये आर है और ये भी आर है। तो मैंने जो गाउसियन सरफेस लिया है ना वो सिमेट्रिकल लिया है ऑन बोथ साइड्स, एंड बोथ आई हैव टेकन इज ऑफ लेंथ सेम लेंथ r, ठीक है। सो दैट पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, ओके। एंड ये जो सिलेंडर लिया है मैंने उसका रेडियस कैपिटल R दिया। फर्स्ट टेल मी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बाय गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? Q upon epsilon 0. I hope everyone remembers that. हमने लास्ट एप्लीकेशन में भी यही किया है। Second, now electric flux at by Gauss theorem, electric flux is the charge divided by what is this called? Epsilon 0. Epsilon 0. Sorry, epsilon 0. So electric flux at a Gaussian surface क्या रहेगा? So for Gaussian surface electric flux क्या रहेगा? So for this I have taken this point P, मैंने ऐसा ही equivalent point यहाँ पे P dash लिया है। वैसे आपने को इधर ही ढूंढना है, मैंने और एक point P dash लिया है, ठीक है। Now at the curved surface, tell me, सबसे पहले मैंने को कर्व्ड सरफेस का डिस्कस करके बताओ। ये कर्व्ड सरफेस, यहां पर फ्लक्स क्या है? क्या मैं इस कर्व्ड सरफेस, मतलब ये मेरा देखो, ये प्लेन सरफेस है, ये चार्ज सरफेस है, ये सिलेंडर है, ठीक है। मैंने गाउसियन इमेजिनरी सिलेंडर बनाया है। मैं इस कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स की बात कर रहा हूं। कैन यू टेल मी, ये कर्व्ड सरफेस, नॉट दिस प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या रहेगा? टेंजेंशियल यानी क्या रहेगा? 0. देखो यहाँ पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, which is tangential to the surface, ठीक है। So flux is 0. Reason, since intensity is tangential to the curved surface. अगर तुमको और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसका मैंने और क्या बताया था डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल इधर है, ये इंटेंसिटी यानी थीटा कितना है? 90 डिग्री, यानी cos थीटा कितना है? 0, उसके कारण फ्लक्स 0 होगा, ओके। तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस का पिक्चर में आएगा ही नहीं, यानी सिर्फ यही सरफेस पिक्चर में आएगा, बिकॉज द बाउंड्री इज एक्सटेंडेड टू द अदर साइड आल्सो। तो ये फ्लक्स आएगा और ये फ्लक्स आएगा, यानी साइक्लिक इंटीग्रल, किसका साइक्लिक इंटीग्रल आ गया? ये ई ds, कौन से पॉइंट के लिए? एट पॉइंट P, इधर का साइक्लिक इंटीग्रल ई ds एट पॉइंट P प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ई ds ऑफ पॉइंट P डैश, क्योंकि दिस सिमेट्रिकल सरफेस क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस में सिलेंडर सिमेट्रिकल सरफेस एक ही साइड में जाएगा, समझा? तो उसका आर पार वगैरह नहीं कंसीडर कर रहे, ठीक है। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये प्लेन शीट होने के कारण आई हैव टू टेक इट ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज P एंड P डैश। तो फ्लक्स बिकम्स, वैसे भी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds प्लस E कांस्टेंट है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds। अब मैं P और P डैश नहीं लिखा है, रीजन P और P डैश का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तुमको कि ये किसके कारण है? P पॉइंट के कारण, ये किसके कारण है? P डैश। बस ये इतना नोटेशन बताने का था कि ये क्यों आया, ये क्यों आया। अब इनका काम खत्म हो गया, अभी ब्रैकेट का भी जरूरत नहीं, P और P डैश का भी जरूरत नहीं। नाउ E, नाउ टेल मी, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ds लिया था, उसका पूरा सरफेस लेंगे तो ये पूरा एरिया हुआ ना, ये पूरे एरिया को मैं A बोल रहा हूँ, E into A। Now EA plus EA becomes, what does EA plus EA becomes? 2EA. 2EA, ठीक है। अब इक्वेट कर दो,
by Gauss theorem from 1 and 2. अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया तो मुझे क्या मिलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 is 2EA. यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो मेरे को इंटेंसिटी E क्या मिलेगा? ये टर्म नीचे आएगा, यानी क्या आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 into 2A. यहां तक समझा? Any trouble here? No sir. चलो इसका मेरे को पता नहीं ये क्या है. Surface charge. Surface charge Surface density. charge. So this becomes sigma upon 2 epsilon 0, since this is Q upon. अच्छा, इसमें केसेस वगैरह नहीं है. थर्ड एप्लीकेशन में केसेस वगैरह कुछ नहीं आता है, बिकॉज वो इनफाइनाइटली प्लेन सरफेस का है. इसमें आउटसाइड ऑन द सरफेस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. और जो क्यू कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज ये सिग्मा और कोई आर वगैरह कुछ बचा नहीं, कोई एरिया बचा ही नहीं है, कोई दूसरा अननोन टर्म बचा ही नहीं है. तुम्हारे पास सीधा सिग्मा आ गया. ठीक है. नाउ हियर चेंजेस क्या है? तो अपन E इनटू सरफेस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds करते थे. फिर उसका फॉर्मूला, जैसे मैंने स्फीयर में क्या किया था, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. सिलेंडर में क्या किया था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ds. इसका आंसर क्या लिखा था, 2 पाई r स्मॉल r इनटू l किया था. इस केस में क्या हो गया, तुम्हारे पास दो सरफेसेस बन गए, एक p पे एक p डैश पे, बिकॉज इट इज गोइंग ऑन बोथ साइड्स. तो साइक्लिक इंटीग्रल बिकम EA प्लस EA बिकम्स 2EA. तो ये माइनर चेंज है जो तुमको याद रखना, वरना तीनों का तीनों एप्लीकेशन एक ही लेवल में चला जाता है. अगर तुमको फर्स्ट समझा तो सेकंड समझ में आएगा, तो थर्ड समझ में आएगा. इट ऑल डिपेंड्स. मतलब एक भी चीज समझा ना तो तुमको तीनों समझ में आएगा. इजी आई सपोज.